नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आई हैव विद मी मेरे साथ हैं कर्नल दिलीप शर्मा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन डेव टॉक्स। फर्स्टली सर, नमस्कार, वेलकम टू द शो सर। Namaskar, Adi, and nice to be on your show. थैंक यू सर। सर हम लोग कल बात कर रहे थे, वी वर वांटिंग टू टॉक अबाउट ये पाकिस्तान ने जो एक एडवेंचर करा है, आई एम कॉलिंग Hmm. इट एन एडवेंचर बड़े प्यार से। इसने बड़ा अच्छा एडवेंचर करा है कि उसको मतलब ही इज़ ट्राइंग टू गेट अ लॉट ऑफ रेलेवेंस। Yeah. थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया उस रेलेवेंस के अंदर जो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ कवर करा है स्पेशली। बट आपका क्या ख्याल है सर, ये जो कोशिश इसने करी कि भई मैं ज़रा मीडिएशन करता हूँ, 20 शिप्स लेके आता हूँ। पता ये Mhm. चला कि सेलिंग सेलिंग देयर फ्लैग आल्सो फॉर मनी कि यार हमारा Mm. झंडा लगा के ले आओ, कोई बात नहीं, चलेगा, दैट्स ऑलराइट। सो व्हाट डू यू थिंक देयर प्लान वाज़? इनका कोशिश क्या थी सर? Pakistan is both in a very tight spot and also, in a way, a sweet spot. The tight spot we all know about. The sweet spot is what we would like to talk about. But before that, let's just define what the tight spot it is in. If you look at Pakistan today, the economy isn't doing well. The Middle East has almost given up on Pakistan. They know exactly what Pakistan is. They have been giving help to Pakistan, monetary, etc., and signing these so-called pacts, military pacts with Saudi Arabia and all that. I believe that the entire Middle East thought Pakistan would be the savior and the nuclear bomb and all that. But over a period of time, since I would say 2014 onwards, the gradual economic decline of Pakistan and the diplomatic manner in which India has isolated Pakistan has really exposed it to the entire world and especially to all these Middle Eastern states who were being benefited by Pakistan. And they were benefited by, a brigade or troops of people, a battalion worth or whatever, were kind of providing security and doing other kinds of jobs for the West Asian sheikhdams, I would call them. Now, what has happened is, and the US and China also exploited them to a large extent, and they were willing to be exploited. That is the story that we know of as of now. However, Pakistan also has a sweet spot. There are two, three parts of this. One is which has been pretty prevalent. It is a human resource center. If someone has to start a human resource company, a labor company for providing proxy warriors in the name of Islam or whatever you want to, then with the ISI kind of organization backing it, with good, proper intel coming in from all kinds of agencies to them, they were ready to provide manpower for whatever was required across the world. So any government wants some kind of resources to be secured somewhere or some kind of businesses or governments to be coerced into doing what they want. Then you had Pakistan, and Pakistan was a willing provider of manpower for that kind of thing. This intelligence sharing and intelligence gathering, also, I would say, because of this so called Islamic hype that Pakistan has been able to spread across the world. सर Okay. तो जैसे मैं कह रहा था, like we were talking about, Pakistan is both in a tight as well as a sweet spot. Tight spot तो हमने बात कर ली, तकरीबन सबको पता ही है क्या है. The sweet spot is it is a provider of manpower, proxy manpower to anyone who wants it in the world. But in addition to that, because of its association with the CENTO and then the NATO, a lot of countries have come to depend on it for intelligence. And they have good sources of intelligence, especially because of this Islamic जो इन्होंने अपनी तारीख चला रखी थी. So across the world, they have a whole lot of hold or information gathering apparatus. Upper echelons में भी है इनका और lower echelons में भी है. Masjids, madrasas, across the world they have it. तो इनके पास जो इंटेल आती है और वो भी किस किस्म की, tactical level की, that is fantastic. Now this is a sweet spot. It is this that makes them, to an extent,
acceptable for message providing. So they become kind of messengers. So in the present, अभी जो चला हुआ situation है फिलहाल की, that is what is happening in the Middle East, जो अभी Arab countries में जो चला हुआ, especially with Iran and things like that, it has, if you look at it, the entire Arab world, which was totally dependent on the US, is now starting to kind of feel the burnt. इनको गर्मी लगनी शुरू हुई है कि इन्होंने यूएस के साथ लग के ईरान के वगैरह वगैरह इन्होंने जो भी किया सो किया और पैसा भी कमाया. शेखदम भी इनका इन्हीं वजह से लेट्स से सुरक्षित है. Now all that is shaking up. If you notice, a lot of rebellions or a lot of uprisings are taking place, and a lot of opposition is being faced by all sheikhs in almost every Middle Eastern country. जो opposition इनकी चुप बैठी हुई थी, they are now starting to question the sheikhs or the kings, Arab kings. Pakistan had been providing security to them. Personal security, definitely, and this low-level intelligence, etc. ये इनका एक बहुत sweet spot है. This makes Pakistan, this plus the HR providing for the proxy this thing, ये दो चीजें जो है पाकिस्तान को बहुत स्वीट स्पॉट पे डालती है वर्ल्ड ओवर. अब विद इन पाकिस्तान, जो तीसरी बात बोल रहा हूं, विद इन पाकिस्तान आसिफ मुनीर की हालत खराब है. वर्ल्ड ओवर उनका जो हालत हो रखा है वो सो है ही. पाकिस्तानी पर से दे वर नेवर सो कॉल्ड प्रो अमेरिकन और थिंग लाइक दैट. इनके मुल्ले मस्जिदों में सुबह से शाम चीखते हैं एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा एक्सेट्रा, दैट इज गोइंग ऑन. सो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड द मिलिट्री, इनका जो मैन पावर है जिनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम, दे आर एक्चुअली एंटी अमेरिकन. दिस इज द ब्यूटी. मैं इनको इन ए वे अप्रिशिएट भी करता हूं. द ISI हैज टू बी अप्रिशिएटेड हाउ दे हैव रन दिस बिजनेस फॉर सो मेनी इयर्स. What India has done is India has mastered it and they're using it against them. So, इस वजह से आसिफ मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, and what is happening in Western Asia, the entire population of Pakistan is now becoming extremely anti-US from that Islamic point of view. Shia-Sunni divide है, but उसमें भी ultimately यही बात हो रही है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, बिरादरी के साथ ऐसा, why are we going against them? There is another aspect over here. That is फौजी strategic aspect. अगर ईरान के साथ इनका मध्यस्थता नहीं होती या मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं दिखती, then Pakistan will have almost 3 fronts on its western border. बलूचिस्तान में इंटरनली जो हो रहा है सो हो रहा है. अफगानिस्तान वैसे ही चल रहा है उनका. अब ईरान के साथ इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर, लेकिन एक्टिव नहीं था. अब अगर कुछ हुआ तो ये एक्टिव हो जाएगा. नाउ दिस थिंग, ये पूरी जो अभी मैंने आपको पिक्चर पेंट की है, ये आसिफ मुनीर के लिए बहुत बुरी खबर है और बहुत बुरी सिचुएशन है. इससे दूर हटने के लिए इनके पास 2 तरीके हैं. एक तो इंडिया को थ्रेटन करो, और अगर इनकी जान पे आ जाए तो इंडिया पे कुछ कर दो, सो दैट इंडिया इज सक्ड इनटू दिस होल तमाशा. फिर ये अपना वही पुराना वाला जिसको बोलते हैं, आई वोंट यूज बैड वर्ड्स, लेकिन वो रोना हर किस्म का वो शुरू करेंगे और आओ जी बचाओ जी एंड ऑल दैट तमाशा विल स्टार्ट. दिस इज वन वे. द अदर वे दे हैव, इसकी बोलिए कि हम तो अच्छे बच्चे हैं एंड हम मध्यस्थता करेंगे, यूजिंग दैट स्पीच स्वीट spot. Sweet spot इनका number 1 intel providing, number 2 proxy manpower providing, and number 3 हर तकरीबन अरब कंट्रीज के हर एक शेखडम को इन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर किंगडम के लिए फौजें भेजी हैं. वेदर दे वर इन एज कंसल्टेंट्स, एज एडवाइजर्स, या एक जगह तो पूरी ब्रिगेड भेजी है, कहीं इन्होंने ट्रुप्स भेजे हैं, स्पेशल फोर्सेस इनके गए हुए हैं. तो ऑल दिस इज हैपनिंग. ट्रेनिंग एक्सेट्रा इज ऑलरेडी ऑन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेइंग कि हमारे पास सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब है, एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर और व्हाटएवर दे कॉल इट. नाउ इसके चलते इनके लिए बेस्ट तरीका ये है
कि हम बोलें कि हम मध्यस्थता करते हैं, इस्लाम को बचाएंगे। अगर ये मध्यस्थता हो गई किसी भी तरीके, इनकी वजह से होने वाली है नहीं, किसी भी तरीके से होगी, तो ये बोलेंगे हमने इस्लाम को बचा लिया, इस्लामिक दुनिया को हमने बचाया। नाउ दिस इज देयर गैम्बल, इट्स अ गैम्बल, ये सट्टाबाजी है। तो दो ही तरीके हैं इनके पास। नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग। वो ये है कि एक्चुअल नेगोशिएशन करने के लिए नेगोशिएटर कैसा हो। नेगोशिएशन करने के लिए नेगोशिएटर की पहली बात तो हैसियत होनी चाहिए। अंग्रेजी में सिंपल टर्म्स, ही हैज टू हैव क्रेडिबिलिटी। या कुछ लेवरेज तो हो। इनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अरब कंट्रीज वैसे इनसे पैसा वापस मांग रहे हैं, अभी यूएई ने मांग लिया, उससे पहले मांग लिया। और है यूएसए using them only for those two reasons I told you, intel gathering and proxies. उसके अलावा इनका कोई यूएसए doesn't need them. USA will need them for the geography, provided they can show a open hostility towards China. वो ये करेगा नहीं। और इनको ये भी पता है, they look at the way they are playing. उनको ये भी पता है कि प्रो चाइना पाकिस्तान कभी टोटली हो नहीं सकता। इनके सारे जनरल, सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इनके सारे पॉलिटिशियंस, तो दे ऑल बेस्ड ऑन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। एग्जाइल के बाद जाएंगे कहां ये? रिटायरमेंट के चाइना तो जाने से रहे, रशिया जाने से रहे। सो अमेरिका इज यूजिंग देम, एंड इस सिचुएशन में इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सो नेगोशिएशंस ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जीरो। अरब कंट्रीज को भी पता है कि अमेरिका इनके सुनने वाला नहीं है, ईरान तक इनकी नहीं सुनने वाला। सो व्हाट इज द गैम्बल? ये सट्टा है क्या इनका? ये जो पत्ता खेल रहे हैं या तीन पत्ती खेल रहे हैं, दिस इज बेसिकली ऑन टू थिंग्स। एक, ये मैसेंजर बनेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ट्रंप की बात अगर इन्होंने किसी बैक चैनल से ले जाके चुपचाप किसी ईरानियन को सुनानी है, या सलमान बिन सॉरी क्या नाम है, सुल्तान जो है इनका सऊदी अरेबिया वाला, इसकी बात ले जाके उन्होंने सुनानी है, तो देन दिस इज वेयर दीज पीपल विल कम इन। मैसेजिंग, दिस इज वन पार्ट, एंड सम काइंड ऑफ गारंटी कि भाई फॉर देमसेल्व्स बेसिकली, कि हम आपका बॉर्डर सुरक्षित रखेंगे, आप हमारा बॉर्डर सुरक्षित रखो, एज फार एज ईरान इज कंसर्न। दैट मे ओपन some kind of backdoor diplomatic channels for both USA as well as for Iran. And I believe, despite public posturing, जो public पे जो भी posturing चल रही है, I think both Iran and America are wanting an off ramp. क्योंकि हालत खस्ता दोनों की हुई है, चाहे कुछ भी कह लो। एंड ईरान की सपोर्ट में चाहे चाइना आ जाए, चाहे यूएसए रशिया आ जाए, दे आर बोथ हैविंग देयर ओन ट्रबल्स। दोनों को, वी विल नॉट गो इनटू दैट, इट विल बिकम अ लेंथी, मच मोर लेंथी पॉडकास्ट। तो एवरीवन इज वांटिंग एन ऑफ रैम्प इन द प्रेजेंट स्टेट। द अरब कंट्रीज डू नॉट वांट यूएसए टू गो बैक विदाउट सम काइंड ऑफ अ सॉलिड सेटलमेंट कि ईरान विल नॉट rise up again to do whatever it was doing earlier. Iran wants America to back off totally so that they are having some kind of a thing, which is again not possible. तो जो हमें इनकी मध्यस्थता का, पाकिस्तान को छोड़े, वैसे ही अगर कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकलनी है, तो वो इसमें दोनों के फर्स्ट फेज में तो स्टैंड दोनों के बिल्कुल ही दृढ़ है। ये दोनों पीछे हटने लायक लगते नहीं है। तो जो भी होने वाला है ये बैक चैनल से होने वाला है, और बैक चैनल में पाकिस्तान की जान अटकी हुई है। फिलहाल पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी ना किसी हालत से इनको कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया जाए, इनकी रेलेवेंस बनी रहेगी। और उसके लिए इसके पास दो ही चारे हैं कि एक अच्छा मैसेंजर बन जाओ, कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो खाने में गए थे, उसके बाद उन्होंने फिर टेलीफोन करके हमें ये बताया वगैरह वगैरह, सम नॉनसेंस लाइक दैट। बट that backdoor channel, so-called private messages, etc., that Pakistan has a leverage, and that is because what I told you, कि इन्होंने प्रॉक्सी भी सप्लाई करते हैं, इंटेल भी सप्लाई करते हैं, और इस किस्म की बैकडोर मैसेजिंग भी इनकी है।
So this is what I feel about the Pakistani so-called वही है ना, negotiation. एक ही वो है, but nobody trusts Pakistan. एक लिंक खोल देगा. Unfortunately, Pakistan army does not trust Asif Munir. Nor do the politicians of Pakistan trust the government. You see, they are in a very Nobody bad trusts state. him. It's a very interesting पाकिस्तान situation. का वो हाल है, पाकिस्तान का वो हाल है लिक्विड ऑक्सीजन वाला. हाँ, डूबने भी नहीं देना और सांस भी नहीं डालने देना. yeah, absolutely. That is the spot, and that is the spot where Asif Munir and Pakistani army will do anything to stay relevant. This is what it is. Thank you, sir, for that. Yeah. Very, very interesting. Pleasure. And सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन support the channel, check out the description. Sir will be back with us. This is his first show. I will keep getting sir back, but give your comments and your thoughts and encouragement for sir to come back as well. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Adi, and namaskar to your audiences. Bye-bye.